Hello, good evening and assalamu alaikum. You're watching Sports Tonight and मैं हूँ रोहा नदीम. We are back with another episode live. बहुत कुछ चल रहा है in the world of cricket, चाहे वो white ball में हो, चाहे वो red ball में हो, दुनिया में पाकिस्तान में खेली जा रही हो, दुनिया में कहीं और खेली जा रही हो. There's always something going on and we have our eyes on everything. तो आज के एपिसोड में हम बहुत सारी डिस्कशंस करेंगे. ऑफ कोर्स एशेस के ऊपर बात करेंगे इन डेप्थ एंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम की या रादर टीम्स की जो अभी एट होम भी पाकिस्तान जीता है. अभी एशिया कप राइजिंग स्टार्स में भी पाकिस्तान हैज़ बीन क्राउन्ड चैम्पियंस. सो देयर इज अ लॉट ऑफ positives that have to be talked about. लेकिन before we go towards all of that with our experts, a quick look at the cricketing news from around the world. Pakistan beat Zimbabwe by 69 runs to reach the final of the T20 Tri-Series at home. A half-century from Babar Azam and an Usman Tariq hat-trick really walloped Zimbabwe by 69 runs to dent their net run rate and keep Sri Lanka in contention for the final. Pakistan Shaheens emerged the champions of the Men's Asia Cup Rising Stars 2025 after they beat Bangladesh A in an engrossing contest involving a super over after both the teams scored 125 runs in their innings. The Perth Test becomes the shortest Ashes match in over 100 years. Australia completed the chase of 205 in 28.2 overs at an astonishing net run rate of 7.23 runs, the fastest successful chase of 200 or more in Test history. Azhar Ali has resigned from his position at the PCB as selector and head of youth development, ending a 12-month stint in that role. Azhar had joined the National Selection Committee in October 2024. Former international cricket umpire Khizr Hayat, who had been unwell for quite some time, has passed away in Lahore at the age of 86. He represented Pakistan Railways in first-class cricket and began his umpiring career in the 1970s. The Pakistan Super League has announced that the auction for the two new HPL-PSL franchise teams will take place on January 6, 2026. जी, plenty of things there to talk about in the world of cricket. यहाँ पर एक short break, but when we come back, as I said before, a lot of in-depth discussion, especially on what happened at the Ashes and all the next white ball activity that's going on in Pakistan and around the world. Closely हम उसको आज discuss भी करेंगे with our panel of experts. Don't go anywhere. You're watching. जी, welcome back. You're watching Sports Tonight and this is the cricket special. Break से पहले of course we caught up with all of the cricketing news from around the world और इसी को अब carry on करते हैं हमारे panelists के साथ जो कि आज हमें join कर रहे हैं in our Lahore studios, starting with cricket commentator and broadcaster Tariq Saeed. अस्सलाम वालेकुम Tariq साहब, welcome back to the show. बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुक्रिया आपका शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया. उनके साथ एक और रेगुलर मौजूद हैं जी, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसन आजम is back with us. Assalamu alaikum Hassan, great to have you as always. Walaikum salam. So happy to be here, especially after last night's Asia Cup win. It's just amazing. All smiles here in the studio. इनके साथ हमें आज ज्वाइन किया हुआ जी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इरफान ज़हीर साहब ने. अस्सलाम वालेकुम इरफान, great to have you back in the show. Thank you जी, thank you for having me. जी, आज की डिस्कशन का सिलसिला हम एशेज से शुरू करेंगे. That first test that Australia won by 8 wickets and what a match that was. But I want to start off with this. Tariq साहब, I don't think कि हम में से किसी ने अपनी ज़िंदगी में 2 दिन का टेस्ट मैच देखा है. एक न्यू काइंड ऑफ रिकॉर्ड, एक समथिंग जो एक हिस्टोरिक वे में आप याद रखेंगे. ऑस्ट्रेलिया ने वो करके दिखाया और इस टेस्ट में दोनों टीम्स ने, बल्कि दोनों ऑन डिफरेंट ओकेजन्स दोनों टीम्स नज़र आ रही थी ये टेस्ट जीतते हुए. बट
in the end it was Australia winning by 8 wickets. जी हाँ, और इंग्लैंड मेरा ख्याल है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा वो जो खुद एतमादी थी वो उनको ले डूबी है। और क्योंकि पहले दिन वो जितनी अच्छी पोजीशन में आ गए थे और फिर दूसरे दिन लंच पे एक आउट है, आपकी 100 के करीब लीड है, 9 विकटें आपकी रहती हैं, 2 सेट आपके बैट्समैन विकेट पर हैं, उसके बाद से इस तरह बस शॉट्स खेलते जाना उस पिच के ऊपर, आपको वो दुनिया की सबसे एलियन पिच है। जो बाहर से जितनी भी टीमें जाती हैं ये पर्थ में, वो आज तक बहुत कम ऐसा हुआ है कि कोई ऑस्ट्रेलिया को इस पिच पे हरा सका हो। पहले वो वाका की विकेट हुआ करती थी इसके पड़ोस में, अभी नया स्टेडियम बन गया है, लेकिन ज़ाहिर है कि ऑलमोस्ट कंडीशंस वही हैं। और इंग्लैंड, मुझे तो नहीं याद पड़ता कि इंग्लैंड यहाँ, मैंने तो नहीं कभी इंग्लैंड को टेस्ट मैच जीतते हुए देखा है पर्थ में, जब से हम क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं। 87 में तो जब ये एशेज़ जीते थे बहुत अच्छा खेले थे ऑस्ट्रेलिया में जाकर, लेकिन उस वक्त भी ये पर्थ में नहीं जीते थे, वो टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया था। तो वो जो इनका बेसबॉल वो चला हुआ है इतने अरसे से, वो वन ऑफ बहुत बैटिंग विकेटों पे वो चल गया कहीं रावलपिंडी में इनके मुल्क से बाहर, वरना ये इंडिया में भी उसी तरह से हारे हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में इतना इन्होंने सुनहरी मौका ज़ाया किया। वो कहते हैं ना कि आज तक दुनिया में इतने लोग गोली से नहीं मरे जितने गलत फहमी से मरे, तो ये भी उसी गलत फहमी में ही मारे गए। And I think they will have a lot to think about। जिस तरह तारिक साहब ने कहा कि 105 की आपकी लीड है, 9 विकेट्स आपके हाथ में हैं, फिर ऐसा क्या उनके तरफ से, ऐसी क्या बार बार गलतियां हुई कि दे एंडेड अप लूजिंग बाय 8 विकेट्स इन अ स्पैन ऑफ आवर्स। आई थिंक इट वाज सो क्विक जो अनरावलिंग वहाँ पे हो रही थी इंग्लैंड टीम की, कि उसको अब हम उसका एनालिसिस क्या करें, ये भी एक इंटरेस्टिंग चैलेंज है। आई थिंक 2-3 चीज़ें हाईलाइट हुई इंग्लैंड की जाने से। 5 घंटे में, जैसे आपने कहा, गेम का नक्शा बिल्कुल बदल गया, और उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि उन्हें रियलाइज़ अब होगा भी और करना भी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द लेंथ। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने क्या किया, अच्छा कि उन्हें ऑन द अप खिलाते रहे। खास तौर की पर्थ की विकेट पे प्रॉब्लम क्या होती है फॉरेन टीमों के लिए, और एलियन कंडीशंस हैं, वो पेस और बाउंस देखने की वजह से उस विकेट पे बहुत शॉर्ट बॉलिंग करते हैं। इंग्लैंड ने हालांकि पहली इनिंग्स में भी ये किया था, स्ट्रोक्स के भी जो 5 खिलाड़ी आउट किए, अगर उनका आप स्पेल देखिए तो ही वॉज आइदर फुल और ही वॉज वेरी शॉर्ट, तो उन्हें विकेटें मिली फुल डिलीवरी पे। ऑन दी अप ड्राइव मारना पर्थ में इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स, स्पेशली अगेंस्ट बॉलर्स हु कैन निप द बॉल। और आप मिचेल स्टार्क के लिए तो ये वॉज आइडियल कंडीशंस। फिर बॉलैंड ने आके जिस तरह उनका मिडिल ऑर्डर उड़ाया, वो तो गलती हुई। दूसरी तरफ जब उस्मान ख्वाजा का बैक स्पैज़म होता है, और वो बड़ा खुशाइन साबित हुआ ऑस्ट्रेलिया के लिए भी, और जिस तरह आते हैं ट्रेविस हेड इन द वे ही स्टार्ट्स प्लेइंग, गलती फिर क्या हुई, आर्चर तो जगह पे बॉल कर रहे थे, क्योंकि गुड लेंथ से भी आगे फुल लेंथ से यहाँ पर गेंद राइज होता है। सारे इंग्लैंड के बॉलर शॉर्ट बॉल करते रहे और उन्हें इतना मौका ही नहीं मिला कि वो अपनी लाइन को एडजस्ट कर लें, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि टी ब्रेक होती है, कोई ब्रेक होती है ना, तो आपकी एज ए टीम मीटिंग हडल होता है, यू रीवैम्प के हम क्या गलत कर रहे हैं। दे वर कंप्लीटली ब्लोन अवे बाय द ट्रेविस हेड इनिंग्स, स्पेक्टेकुलर इनिंग्स, और उन्हें वक्त ही नहीं मिला। एक चीज़ ज़रूर है, अब उन्हें बेसबॉल के एतबार से, पहले भी डिबेट चल रही थी, क्या इस एशेज़ में इंग्लैंड आगे बेसबॉल स्टाइल क्रिकेट खेल सकता है? द रिजाउंडिंग आंसर है एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया पे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कंडीशंस के मुताबिक, और जहां पे आपको टाइम गुजारना है क्रीज पे आपको गुजारना पड़ेगा, वरना आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। Let's talk about that Travis Head knock as well. 123 of 83 deliveries coming in at the right time when Australia really needed to finish that game. उनको वो deeper end तक लेके गए अपनी बैटिंग की वजह से, and he is someone that is known to do those big runs, to score those big runs. उनका build-up ही ऐसा है उनके करियर का, कुछ इस तरह का, and explosive is just the word for it. या बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक्सप्लोसिव के माइंड ब्लोइंग के, जो उसको कहना चाहें वो कम है। शायद इस 5-6 ईयर के स्पैन में इससे एक्सप्लोसिव बैट्समैन हमने नहीं देखा। हमें 2023 का वर्ल्ड कप याद है, टेस्ट चैंपियनशिप जो जीते उसके फाइनल में सेंचुरी याद है, तो हमेशा बड़े टाइम का बड़ा प्लेयर। और मैं सुन रहा था कि इन्होंने खुद ओपनिंग मांगी, जब पता चला कि ख्वाजा ओपन नहीं कर सकते, तो इन्होंने कैप्टन से कहा स्टीव स्मिथ से कि मैं ओपन करता हूँ। तो ये एक बड़े प्लेयर की ये बहुत बड़ी एक उसकी होती है इंपॉर्टेंस कि वो खुद बात करता है और कहता है कि मैं इस नंबर पे हूँ। एक टेस्ट क्यों कहते हैं कि टेस्ट आपकी हर चीज़ का टेस्ट है, आपके टेम्परामेंट का, आपके स्टाइल खेलने का और अपने आप को ग्राइंड करने का।
जो कि अनफॉर्चुनेटली जैसे दोनों ने बात की वो एक बेसबॉल मॉडल है, वो समहाउ वाइट बॉल के फॉर्मेट में तो काम कर गया कि T20 वर्ल्ड कप जीत गए, 2019 का वर्ल्ड कप जीत गए, बट टेस्ट मैच को अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो इवेंचुअली आपके साथ यही होगा जो अभी होता आ रहा है लास्ट 4-5 ईयर से। और आई एम श्योर कि ये पूरा इंग्लैंड, अगर आप माइकल वॉन को सुने, नासिर हुसैन को सुने, माइकल एथर्टन को सुने, तो उन्होंने जिस तरह हसन बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा ये एक इतनी बड़ी शॉकिंग चीज़ है कि आप ड्राइव पर्थ की पिच पे मार ही नहीं सकते। और हमारे बैट्समैन ब्रुक की बात करें जो उसके बाद भी आ रहा है, सब वो ड्राइव मार रहे हैं। वो 4 तो लगातार कवर हाँ, ड्राइव एक करते ही हुए शॉट पे। और ऑस्ट्रेलिया वाज नोइंग दैट कि ये इसमें ये इस पार्ट पे इनको खिलाना है, इन्होंने रुकना तो है नहीं है, दे डोंट हैव एनी सेकंड ऑप्शन, ना उन्होंने रुकना है ना उन्होंने वो बॉल को लीव करना है। और आप ये देखें कि मिचेल स्टार्क वाज द ओनली बॉलर। पहले अगर आप मैच को देखें, उसने पहले मैच के अंदर पहली इनिंग्स में भी 12 ओवर किए, सेकंड में भी उसने 12.1 किया। तो सिंपली आपने किसी तरह सी ऑफ करना था मिचेल स्टार्क को, और बाकियों पे आप चले, आपने चार्ज भी लेना था तो आप लेते, तो आप यू कुड हैव बीन इन द बेटर पोजीशन। बट अनफॉर्चुनेटली जो प्लानिंग थी, जो गेम सेंस थी, जब एक माइंडसेट लेके आते हो ना आप, और आप हम ये देखते चलते आ रहे हैं कि इंग्लैंड जो है वो परसिस्टेंट है, वो अपने आप को चेंज नहीं कर रहे। बट मुझे लगता है कि इस एशेस के बाद अगर लेट्स अभी तो रिटर्न ऑन द वॉल नज़र आ रहा है कि ये 5-0 होगा जिस तरह की अप्रोच के साथ जा रहे हैं। माइट भी सिडनी में उनको थोड़ा सूट करे, वो बैटिंग सरफेस होता है, रेस्ट तो शायद उधर भी ऑस्ट्रेलिया एक भी ड्रॉ नहीं दे रहे हो, एक भी कोई और तरफ आप भी नहीं करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बारिशें हो रही हैं पिछले कुछ सालों से जी। और इस साल भी इनकी जो वेदर के बारे में फोरकास्ट यही है कि शायद कुछ टेस्ट मैचेस जो हैं अगर वो बारिश से मुतासिर होते हैं, तो लास्ट टाइम इंडिया के टेस्ट मैचेस भी हमने देखे थे, तो मे भी उस वजह से किसी मैच का नतीजा है, वगैरह कंडीशंस की वजह से ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम मैच Batting होता है wicket देनी नहीं उन्होंने अब तो। वो ड्रॉ बट हो अब जाए। इस पॉइंट पे जिस तरह ये पहला मैच, दिस मैच हैज रियली सेट द टोन फॉर व्हाट दिस सीरीज इज लाइकली गोइंग टू लुक लाइक। लेकिन डज दिस इंग्लैंड साइड हैव इट इन देम टू बाउंस बैक, टू गिव अस समथिंग जिसको हम कहें कि यार ये टक्कर एक्चुअली टक्कर हुई है, वरना तो ये एक बहुत ही वन साइडेड एशेस हमें नजर आ रही है गिवन द कंडीशंस। आई थिंक बिल्कुल है इंग्लैंड की। अगर आप पोटेंशियल की बात करें तो एक वक्त जिस तरह तारिक भाई ने बात की, सेकंड डे के लंच तक इंग्लैंड वाज इन दी असेंडेंसी। उन्होंने उस असेंडेंसी को जाने दिया बिकॉज ऑफ देयर रैश शॉर्ट सिलेक्शन, और शॉर्ट सिलेक्शन बहुत की होगी ऑस्ट्रेलिया पिचेस पे। अगला मैच भी ब्रिस्बेन में, वहाँ पे पिंक बॉल भी यूज़ होना है, इन बिटवीन उनको एक प्रैक्टिस मैच भी मिल रहा है उसके लिए जहाँ पे स्विंग और सीम खेलना होगी। अब ऐसी कंडीशन से आप उठ के आ रहे हैं जहाँ तो आप स्विंग खेलते चले आए हैं फ्रॉम एन अर्ली एज इंग्लिश कंडीशंस में, तो निगोशिएट उसे करना है। टेक्निकली सब कुछ मौजूद है, उनका माइंडसेट अप्रोच चेंज होने वाली बात है। आई स्टिल बिलीव इट्स टू अर्ली टू से और राइट इंग्लैंड ऑफ। उनके बॉलिंग अटैक को 5 फास्ट देखिए, बॉलर हैं और बहुत ही ज़बरदस्त है। बिल्कुल प्रोबेबली वन ऑफ देयर बेस्ट बॉलिंग जनरेशंस, जिसमें उनके पास वैरायटी है, नॉट द सेम टाइप ऑफ बॉलर्स, ऑल ऑफ देम आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और उन्हें सूट करती है ये चीज़। उनके लीडर भी ऐसे हैं, बैज मैकलम भी ऐसे हैं, जो कि दोनों एवोल्यूशन पे बिलीव करते हैं। हाँ, बेसबॉल भी एक एवोल्यूशन ही थी उनकी तरफ से, जो उन्होंने दुनिया को इस टेस्ट क्रिकेट को इस तरफ लेकर चले गए। तो अब उनका टाइम है ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस को अडॉप्ट करना और वहाँ पे चीज़ें चेंज करना। बिल्कुल, and I think it will be interesting to follow this series and watch how England bounce back from this defeat, which was in a lot of ways quite humiliating in this context. के Ashes is always so जिसे कहते हैं ना, surrounded by all of this media frenzy and there's so much music always. तो मज़ा भी आएगा देखने का as viewers. But moving on to another series of victories for team Pakistan. अगर हम बात करें कि number of games back to back जीतने के बाद पाकिस्तान are now in the final of the T20 Tri series that is being played at home. जिम्बाब्वे को बड़ा कन्विंसिंगली हराया और बैक टू बैक इरफान एक डिस्प्ले ऑफ कॉम्पिटेंट परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिली पाकिस्तान की तरफ से। पहले तो ये जो लास्ट मैच हुआ है इसके बारे में बात करेंगे। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट उस्मान तारिक नाउ, वी हैव सीन हिम इन द सर्किट फॉर अ व्हाइल, लेकिन ये कितना इंपॉर्टेंट था उनके अपने कॉन्फिडेंस के लिए कि इतने मतलब एक्साइटिंग मैच में हैट्रिक लिया एंड नाउ ही हैज़ अनाउंस्ड हिमसेल्फ टू द वर्ल्ड। यस, बड़ी अच्छी ये चीज़ ये कि हम कंटिन्यूसली 2 साल से ये बात कर रहे थे कि वी डोंट हैव ए स्पिनर, क्वालिटी स्पिनर की जब बात करते थे। अनफॉर्चुनेटली जब से शादाब की थोड़ा सा बुरा पैच आया तो हम एकदम बिल्कुल ही हमें लगा कि एक बहुत लंबा स्पैन आ गया कि हमारे पास कोई सेकंड या थर्ड ऑप्शन नहीं है। इसी तरह अबरार को हमने देखा कि वो कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अबरार के बाद अभी उस्मान तारिक ने अपनी प्रेजेंस शो कर दी है। सुफियान ने जिस तरह कल फाइनल में बॉलिंग की, सेमीफाइनल में, वो क्यू में है।
तो ये 3-4 आपके पास ऐसे बॉलर आ रहे हैं, फैसल अकरम आपके पास ODI और टेस्ट के लिए कमोडिटी बन रहा है, तो दैट इज़ अ वंडरफुल साइन फॉर द पाकिस्तानी क्रिकेट। और जो एक पाकिस्तानी टीम का एक कम्बिनेशन जो बनता चला जा रहा है, जो एक डेवलप हो रहा है, ये बड़ा अच्छा साइन है। ये ज़रूर डिबेट एक कर सकते हैं हम कि ये शायद ए टियर की टीमों के अगेंस्ट हम नहीं खेले। बहुत से लोग कल भी बात कर रहे थे कि आप सिर्फ इस 6 मंथ के स्पैन के अंदर एक अच्छी साइड जो थी वो इंडिया थी, उससे आप 3 दफ़ा हार चुके एशिया कप में, तो ये सेकंड ईयर से आपकी टीमों से जीत रहे हैं। बट मेरा मानना ये है कि दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट कि आपका जो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, जो हम लास्ट 2-3 साल में हम USA से हारे, अफगानिस्तान से हारे, मतलब हर अपोजिशन से, आयरलैंड से हम हारे, बांग्लादेश से अपने होम सॉइल पे हारे, तो ये विक्ट्रीज हमें कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस दे रही है। अब उसका देखिए इम्पैक्ट आ रहा है, आपकी बैकअप जो लड़के हैं उनके ऊपर भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। दो कि आप कहेंगे सिंगापुर का इवेंट कोई खास नहीं है, बट उसका हमने देखा, हमने वो टाइटल जीता। बिल्कुल मैटर जरूर करता है आपकी हर टियर की टीम, स्पेशली जब टॉप टियर टीम आपकी जीतना शुरू करे दोबारा से एट होम। एक T20 साइड की अब एक बैलेंस्ड शक्ल जो है वो हमारे सामने निखर के आ रही है। सलमान अली आगा की कैप्टनसी में ये फाइनल में अब हम पहुंच गए हैं। अगेन बैक टू बैक गुड परफॉर्मेंसेस। आपको लगता है कि जो इश्यूज थे, जो कि T20 वर्ल्ड कप में भी एक्सपोज हुए, जो एशिया कप में भी एक्सपोज हुए, चाहे वो बैटिंग के हवाले से हो, मिडिल ऑर्डर के हवाले से हो, या स्पिनर्स का एक बहुत बड़ा इशू था, आपको लगता है कि अब थोड़ा सा हमें बैलेंस नज़र आ रहा है पाकिस्तान टीम का बनता हुआ? देखिए, सबसे जो अच्छा हुआ है वो ये है कि जो 2 सीनियर स्टेट्समैन हैं पाकिस्तान की बैटिंग के, बाबर और फ़खर, वो रन्स करने लगे हैं टीम के लिए, और जिस फॉर्मेट में भी वो खेले हैं वो करते हुए दिखाई दिए। तो बाबर के आने के बाद एक तो पाकिस्तान का ये जो इशू था बड़ी टीमों के खिलाफ कि 20 ओवर्स नहीं खेल पाते थे, इंडिया वाला जो जिक्र हुआ, तो एक तो वो हल हो जाएगा, और फिर वो फॉर्म में भी हैं, उनका एतमाद भी बहाल हो रहा है। और फ़खर जमान जो हैं वो अब लग रहा है कि वो किसी भी नंबर पर वो बेहतर परफॉर्म कर लेंगे। हाँ, अभी भी मिडिल ऑर्डर में वो हैं पाकिस्तान के कुछ जो है ना, वो जो प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बिल्कुल कहते हैं, बाबर की खुद भी जो नंबर 4 की सेंचुरी, पोजीशन है उस पर सवाल है अभी सीरियसली कि उसको कौन होल्ड करेगा। इस तरह नई गेंद का इशू है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन ये बाबर ने तो कमाल खेला इसमें। और तो और कोई issue 83 इनिंग्स के इंतजार के बाद एक सेंचुरी करना, वो भी अगेन मेरा ख्याल यही जमूद था जो एक टूटा है, क्योंकि मेरा ख्याल है वो सेंचुरी जो थी वो शायद इनको वो जो ज़हनी एक वो रुके हुए थे जहाँ पे, वो ब्लॉकेज जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब ये उससे निकल आएंगे वो सेंचुरी। बिल्कुल। और हमारे शो पे ही हमने एक जब हम बिल्डअप कर रहे थे ये श्रीलंका वाले सीरीज़ का, तब रेहानुल हक हमारे शो पे उन्होंने प्रेडिक्शन की थी कि इस सीरीज़ में तो लाजमी है सेंचुरी, लॉ ऑफ एवरेजेस। और वो क्लिप हमने सोशल मीडिया पे भी शेयर किया, काफ़ी वो वायरल भी हुआ। बट वो इतना इंटरेस्टिंग पॉइंट था और एक कॉन्फिडेंस जो हम सबको था बाबर आजम की एबिलिटी में, बट इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम एज बाबर से ज़्यादा यकीन था रेहान और आई थिंक उनके सेंटिमेंट्स और उनके थॉट्स को एको किया है सारे फैंस ने कि ये अब बनता था। एंड एज तारिक साहब आल्सो सेड कि अब उनको कॉन्फिडेंस आएगा across formats, because you can see even in the last match the way, the kind of knock he played, जिम्मेदारी is the word and ठहराव is another word for him. बिल्कुल। और कॉन्फिडेंस अपनी एबिलिटी पे ख़ास तौर पे जब बाबर का स्टार्ट थोड़ा सा मेजर्ड होता है ना, तो मेकिंग अप दैट बॉल्स, क्योंकि T20 क्रिकेट में अगर आपने थोड़ा सा मेजर्ड स्टार्ट लिया और आप कवर नहीं कर पाते तो सारा प्रेशर मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर पे आ जाता है। ये चीज़ जो दोनों बड़े नॉक्स बाबर ने खेले हैं अभी तक सिंस इज रिटर्न टू द T20 साइड, दोनों में उन्होंने यही किया है कि अगर थोड़ा सा मेजर्ड स्टार्ट लिया है तो जब अपने 50 के करीब गए हैं, जैसे ही उसे क्रॉस किया तो उनकी स्ट्राइक रेट की एक्सेलरेशन बहुत कमाल रही है और वो कवर अप बहुत जल्दी हुआ है, जिस वजह से उनका फिनिश ऐसा होता रहा है। तो जब भी आपका कॉन्फिडेंस उस जगह पर आ जाता है जहाँ पे आप फंसे होते हो मेंटली, आप अपनी सेंचुरी स्कोर करते हो। रिमेंबर कोहली की एग्जैक्टली 83 इनिंग्स थी ऑल फॉर्मेट्स में जब वो फंसे हुए थे, एंड बाबर ट्वीटेड टू हिम कि दिस टू शैल पास, एंड आयरॉनिकली वी कंपेयर बाबर एंड कोहली सो मच दैट द यूनिवर्स सेड कि ये लो बाबर 83 इनिंग्स बाद तुम्हारी भी सेंचुरी हो गई। तो दिस इज सो आयरॉनिक बट अगेन सो ब्यूटीफुल बिकॉज ही नोज एट दैट लेवल दैट कॉम्पिटिशन ही प्लेज एट how to deal with it now, and that confidence will translate into all his formats. Absolutely, and हम टॉप ऑर्डर की भी मजीद बात करेंगे। जो फॉर्मेशन इस वक्त टॉप ऑर्डर की बन रही है, साहिब ज़्यादा फरहान इन दिस सीरीज
has already scored 159 runs. So we are used to seeing him get those runs at the top. लेकिन आपको do you agree with this कि साइम and फरहान and then 3 पे बाबर, ये कॉम्बिनेशन हम वर्ल्ड कप में कैरी ऑन होता हुआ देख रहे हैं? 100%, आई गेस इससे अच्छा कोई कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता। और साहबजादा फरहान की बात करें, ही इज़ द ओनली पाकिस्तानी इन द हिस्ट्री हु हैज़ हिट 100 सिक्सेस। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके पास कि अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ डूइंग वंडरफुल। अच्छा, साथ जो साइम है वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि बहुत जल्दी करते हैं माशाल्लाह। जितना उसके पास पोटेंशियल है, जितनी शॉट्स की रेंज है, कहीं ना कहीं उन्हें अपने आप को थोड़ी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। अपनी स्टाइल का बैटिंग को थोड़ा सा मेरा ख्याल है ठहराव लाने की ज़रूरत है। बाबर का जहाँ तक हम बात करें, बाबर के 2-3 सिग्निफिकेंस हम देख सकते हैं। एक तो बाबर जब खुद करते हैं अच्छा तो टीम करती है। दूसरा जो उसके सराउंडिंग लड़के हैं उनको लिबर्टी मिलती है कि हम अच्छा खेल सकते हैं, जैसे साहबजादा फरहान को हमने देखा। तीसरा ये कि बाबर इज़ दैट प्लेयर, काइंड ऑफ प्लेयर के जो बाद में बड़ी हिटिंग भी कर सकता है। जो एक टैग करते हैं ना, बाबर जी स्लो खेलता है, बाबर के पास एबिलिटी है। और बाबर को जो हम बात कर रहे हैं, जो 100 से उसको ज़रूर कॉन्फिडेंस आया, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 2-3 मैच ऐसे थे जिसमें बाबर ईजिली नॉट आउट जा सकता था। ही स्कोर्ड, ही प्लेड वेरी रैश शॉट। जैसे लास्ट मैच में आपको याद होगा, वो पीछे हट के उन्होंने शॉट मारी और बॉल से दूर से बोल्ड हो गए। तो कई दफ़ा होता है कि अगर आपसे उस तरह के रन्स नहीं हो रहे तो आपका नॉट आउट जाना आपके लिए और आपकी टीम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो कम्बिनेशन तो टॉप ऑर्डर का ये है। प्रॉब्लम हमारा मिडल ऑर्डर है। मिडल ऑर्डर में फ़खर मुझे लगता है कि एक ऐसा प्लेयर है, कंसिडरिंग दैट कि हमने T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका में खेलना है। मैं कल यही याद कर रहा था कि रिकॉल कर रहा था कि हमने जो यूएई के अंदर खेला था वर्ल्ड कप, उसमें बाबर रिजवान ओपर करते थे, फ़खर थोड़ा लेट आते थे। फ़खर हैज़ डन वंडरफुल जॉब विद दैट नंबर। तो फ़खर मुझे लगता है कि जब हसन नवाज़ पे आप ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहे, उसकी फॉर्म पे, समद भी इंजर्ड हो गए अभी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको बैकअप के तौर पे मास सदाकत को रखना चाहिए किसी भी प्लेयर की रिप्लेसमेंट के तौर पे। योर थॉट्स ऑन दिस, क्योंकि मिडिल ऑर्डर डज सीम टू बी गेटिंग एक्सपोज्ड इन एवरी अदर मैच। हम हर मैच में टॉप ऑर्डर से रिलाई नहीं कर सकते हैं कि वो हमें पावर प्ले के थ्रू क्रूज करके दे। समटाइम्स यू विल लूज दोज अर्ली विकेट्स एंड दैट्स व्हेन ऑल द प्रेशर गोज टू योर मिडिल ऑर्डर। आई थिंक मास सदाकत एशिया कप में तो उनकी परफॉर्मेंस फैबुलस रही, और मेरा ख्याल है इतनी जल्दी फास्ट ट्रैक करना वो शायद उनके लिए भी ठीक नहीं होगा। इतने प्रेशर में उनको वर्ल्ड कप के लिए लेके जाना, आई थिंक फ़खर, ये तो एक हमारे लिए खुशाइन बात है कि फ़खर किसी भी पोजीशन पे खेल सकते हैं। ये पाकिस्तान के लिए लकी रहा है। आपने उनको 5 भी खिलाया है, 4 भी खिलाया है, 6 भी खिलाया है, ओपन भी खिलाया। ओपन के लिए आपके पास असल में 3 ऑप्शन है, फ़खर, साइम एंड साहिबजादा फरहान। एंड देन अगर आपके पास, इफ़ यू नॉट बैकिंग हसन नवाज इन द वर्ल्ड कप फॉर इंस्टेंस, देन यू कैन हैव समबडी एल्स, जिस तरह आपने अब्दुल समद रखा था आपके उस नंबर के लिए, 5-6 के लिए। इवन दो आई बिलीव हसन नवाज जैसा बंदा, जिस तरह का उन्होंने स्टार्ट लिया अपने T20 करियर में, खासतौर पे PSL के बाद, और मिडिल ऑर्डर में, लोअर मिडिल ऑर्डर में अपने आप को मनवाया, उस तरह का मैच विनर आपकी टीम में होना चाहिए लाजमी। लेकिन मेरी नज़र में आप तो फ़खर की उस वर्सेटिलिटी को यूज करके उसे नीचे खिला रहे हैं। बिल्कुल, एंड ही इज डूइंग रियल। 170 के ऊपर वो अभी स्ट्राइक कर रहे हैं। अभी तक जितना हमने इस सीरीज में देखा है, उनका फोकस, ऑल्दो सुनने में ये आ रहा था कि वो ज़्यादा वनडे की तरफ फोकस करना चाह रहे हैं फ़खर जमान, बट T20 वर्ल्ड कप में आपको लगता है कि ही माइट बी द की फैक्टर फॉर पाकिस्तान, क्योंकि वो कहीं पे भी उनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए, बड़े इवेंट्स में इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा दबाव झेलने वाला जो बैट्समैन है वो फ़खर जमान से बेहतर कोई नहीं है पाकिस्तान में। और क्योंकि बड़े इवेंट्स में तो हर मैच में किसी आप मिनोज से भी खेल रहे हैं तो उसमें भी प्रेशर होता है, इट्सेल्फ टूर्नामेंट का ही बहुत होता है। तो फ़खर जमान, क्वालिटी ऑपोजिशंस हमेशा, और ये फ़खर जमान और साहबजादा, ये मुझे 2 ऐसे खिलाड़ी नज़र आए थे अभी एशिया कप में भी, जिस तरह इंडिया के बॉलिंग अटैक को जाके इन्होंने झेला कि ये प्रेशर ले सकते हैं किसी भी तरह की कंडीशन में। फ़खर के बारे में तो कुछ भी कहना है सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है, तो मेरा ख्याल उन पे तो सवाल होना ही नहीं चाहिए फ़खर पे। हाँ, ये हो सकता है कि मिडिल ऑर्डर में जिस दिन उनकी अचानक उनकी जो बैटिंग है वो स्पिनर्स के सामने आ जाएगी, दोनों एंड पे श्रीलंका में स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे हुए, तो फिर उस वक्त वो एक ज़रूर बात हो सकती है। बेहतर तो था कि वो टॉप ऑर्डर में ही खेलते पाकिस्तान के लिए, या फिर आप नंबर 6 में वो जितना लेट आएंगे, जिस तरह वो कल आए थे जब फास्ट बॉलर आखिरी 3-3.5 ओवर में बॉलिंग कर रहे होते हैं, तो उसका पाकिस्तान टीम को फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, बाकी हसन नवाज जो हैं, मिडिल ऑर्डर का ही सवाल आपसे करना मुझे लगता है कि हसन नवाज की तरफ पाकिस्तान को वो देखना होगा, क्योंकि थोड़ी सी जो बैटिंग है हमारी वो लाइट है। अभी भी
जब हम देखते हैं उस्मान, क्योंकि उनका कोई इतना प्रूवन रिकॉर्ड है नहीं बड़ी टीमों के अगेंस्ट और अच्छे फास्ट बॉलर के अगेंस्ट, और ये श्रीलंका की जो विकटें हैं ये सिर्फ स्पिनर्स को मदद नहीं करती, यहाँ गेंद ठीक ठाक कट होता है ऑफ द विकेट और कई जगहों पे बाउंस भी होता है। जहाँ पर पाले काले वाले वगैरह में पाकिस्तान के मैचेस होंगे या एसएससी पे, वहाँ पे बाउंस होता है। तो अब अभी तक विकेट कीपर का भी अभी तक है सवाल कि जब ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान यहाँ पे होम सीरीज़ खेलेगा उस वक्त तक हमें कुछ सवालों के जवाब जो हैं वो सही मानों में मिल सकेंगे। इसके अलावा जो मिडल ऑर्डर है वो हसन नवाज़ की तरफ मेरा ख्याल है हमें देखना पड़ेगा, उनका एतमाद बहाल करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, अब थोड़ा सा मिडल ऑर्डर के ऊपर मज़ीद बात करते हैं। T20 साइड में सलमान अली आगा आपके नज़दीक वेयर डज़ ही आइडियली फिट इन, कहाँ पे बेहतर पाकिस्तान उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, बोथ एज अ बैटर एंड ऑफ कोर्स एज अ कैप्टन? देखिए, मैं जब ये अपॉइंट किया था एज ए कैप्टन, इनको मेरा मानना ये था कि शादाब को होना चाहिए था एज अ पॉइंट ऑफ व्यू दैट कि वो जिस तरह की एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं वो अगेन डिबेटेबल चीज़ है। तो हो गए ना कैप्टन, अब ये हुआ तो ठीक है, लेकिन ग्रेजुअली जिस तरह वो टीम को बिल्ड कर रहे हैं एक अच्छे तरीके से लेके जा रहे हैं। बट एक स्ट्रेंज ये बात ये है कि पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि ये ना हमें स्वैप गलत कर दिया, ये मिस्टेक हुई है। सटायर वे में कह सकते हैं हम कि आगा को ओडीआई का कैप्टन होना चाहिए था, शहनशाह अफरीदी को T20 का होना चाहिए था। तो ये ऑब्वियसली बनता तो यही है, बट सलमान अली आगा को स्टेप अप करना है। कप्तानी वो अच्छी कर रहे हैं, अब जो विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली वो सीख रहे हैं, जो टेक्निकली और टैक्टिक वाइज जो अपने डिसीजन ले रहे हैं वो इम्प्रूव होते चले जा रहे हैं। बट कहीं ना कहीं नंबर पे आप उनको देखते हैं आते हुए? नंबर देखे, उनका नंबर तो उनका यही बनता है, इसके अलावा उनका कोई नंबर बनेगा नहीं, क्योंकि अगर वो बहुत लेट आते हैं तो वो आपके पास जो लग्जरी है फ़खर की शेप में, या आपका जो नवाज़ कर रहा है, नवाज़ को हम कभी भी राइट ऑफ नहीं कर सकते। शायद इस पूरी 11 की कंपोजिशन में नवाज इज दैट प्लेयर जो किसी भी नंबर पे आके खेल सकता है। हम तो अभी उसको फिक्स किया हुआ है ना छठे पे। आप उसको याद होगा लास्ट एशिया कप जो पाकिस्तान इंडिया से भी इवन जीता था 2022 में, उसने नंबर 3 पे आके बहुत परफॉर्मेंस दी। न्यूजीलैंड में उसने आपको एक इवेंट जिताया था। तो नवाज़ की जो एक यूनिकनेस है वो इंटायरली डिफरेंट है। वो एक ऐसा प्लेयर है, वो इन टर्म्स ऑफ बैटिंग बात कर लें, बॉलिंग कर लें, उसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो सलमान अली आगा का अगर नंबर इन अ टीम आप देखते हैं तो वो 4 के अलावा कोई सूट नहीं करता। समहाउ आई फील कि वो उनके लिए परसिस्टेंट रहना चाहिए हमें। चले, इंटरेस्टिंग होगा टू सी सलमान एट 4 बिकॉज ऑब्वियसली एक लंबी लाइन है ऑफ टॉप ऑर्डर बैटर्स। सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। स्पिनर उसमें आएंगे ना, स्पिनर के लिहाज से। फॉर श्योर हम अभी मजीद भी बात करेंगे पाकिस्तान टीम के बारे में। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक, बट व्हेन वी कम बैक मोर ऑन दिस टीम एंड ऑफ कोर्स द चैंपियंस। जी, वेलकम बैक। यूर वॉचिंग स्पोर्ट्स टुनाइट एंड वी आर टॉकिंग पाकिस्तान क्रिकेट। अभी ब्रेक से पहले ऑफ कोर्स हम पाकिस्तान मेंस टीम की फाइनल में जाने के ऊपर एनालिसिस कर रहे थे, जो T20 ट्राई सीरीज खेली जा रही है एट होम अगेंस्ट जिम्बाब्वे एंड श्रीलंका। वेल, श्रीलंका आर इन द फाइनल विद पाकिस्तान। वी टॉक्ड अबाउट व्हाट द बैटिंग ऑर्डर मेकअप लुक्स लाइक, बट अब थोड़ा सा ना फोकस टिल्ट करना चाहिए हमें एशियन चैम्पियंस की तरफ। राइजिंग स्टार्स एशिया कप में पाकिस्तान ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फाइनल जीता अगेंस्ट बांग्लादेश एंड ऑफ कोर्स उस फाइनल में देयर आर सो मेनी थिंग्स टू टॉक अबाउट। सबसे पहले तो हसन, सुपर ओवर थ्रिलर, और वो भी फाइनल में। हम सब जो हैं वो होप करते हैं एज फैंस के T20 मैच जितना क्लोज जा सके उतना एक्साइटिंग होता है, बट देन फॉर अ मैच टू गो इनटू द सुपर ओवर for a final, how exciting was that and how nerve-wracking was that to watch? You know, it's almost like one of those movies you'd never want it to end. ये उस तरह का मैच था कि आप चाह रहे थे कि ये चलता भी रहे, लेकिन आप चाह रहे थे कि पाकिस्तान जीत भी जाए। आई थिंक बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स उस गेम में आए, ख़ास तौर पे जिस तरह पाकिस्तान ने कम बैक किया बैटिंग के वक्त, क्योंकि अर्ली ऑन आपकी विकेट्स गिर गई थी। फिर अराफात की पार्टनरशिप लगी साद मसूद के साथ, और साद मसूद ने सेमीफाइनल में भी मैन ऑफ द मैच दिया, और जिस तरह इसमें भी आकर उन्होंने सेटअप किया। अहमद दानियाल ने भी सेमीफाइनल में वो स्कोर किए थे, फिर लेटर ऑन वो भी आए, उनकी भी कोशिश रही कि बड़े हिट्स लगाएं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि पाकिस्तान का स्कोर थोड़ा कम है। उस बैटिंग परफॉर्मेंस में आप चाह रहे थे कि 150-160 वुड बी रीजनेबल स्कोर, लेकिन यही होता है, आप जब फाइनल में पहुंचते हैं आपके हाई स्टेक्स होते हैं, प्रेशर दोनों साइड पे शो होता है। एंड द वे पाकिस्तानी बॉलर स्टार्टेड ऑफ, आई थिंक जैसे ही उन्होंने देखा कि फास्ट बॉलिंग यहाँ पर काम नहीं कर रही, दे ब्रॉट इन देयर स्पिनर्स, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम। अराफात ने आते ही आउट किए, फिर सुफियान मुकीम जिस तरह बॉलिंग की, 3 विकेट्स लिए उन्होंने। बड़ा अच्छा एक जिसे कहते हैं ना बैलेंस्ड
बॉलिंग कार्ड नजर आया और सबने अपनी अपनी Absolutely. तरफ से चिप इन किया, लेकिन जो स्टार थे फाइनल के वो अहमद दानियाल थे। पहले तो उन्होंने आखिरी ओवर में 6 रन्स डिफेंड किए और उसके बाद फिर सुपर ओवर में सिर्फ 6 रन्स कंसीड करके इतने कंट्रोल के साथ उन्होंने बॉलिंग की इतने हाई प्रेशर मैच में। जी हाँ, तो अभी हम बात कर रहे थे कि वो प्रेशर में फिर बड़े दिल वाला जो है वही काम आता है। और अहमद दानियाल, क्योंकि ये यहाँ लाहौर में काफ़ी क्रिकेट खेले हुए हैं, कुछ साल पहले तक ये सिर्फ टेप बॉल ही खेलते थे इधर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ टेप बॉल होती है, इकबाल टाउन या ये 7 अप के इलाके में। तो वहाँ से निकल के अचानक क्रिकेट बॉल के साथ खेलना ये लाहौर कलंदर्स के लिए और फिर इस मकाम तक पहुँच जाना, मेरा ख्याल अनबिलीवेबल ये परफॉर्मेंस थी। और ये सेमीफाइनल में भी प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो इनका बनता था। जिस तरह इन्होंने बैटिंग की थी, एंड पे आगे वो 3 छक्के लगाए थे और फिर जितनी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे थे। और रात तो मेरा ख्याल है वो दोनों टीमों के दरमियान फ़र्क थे। 2 खिलाड़ी पाकिस्तान के जिनका ये टेम्परामेंट प्रेशर में वो सही नज़र आया इस पूरे टूर्नामेंट में, वो एक साथ मसूद हैं और दूसरे अहमद दानियाल, क्योंकि ये तेज़ हैं, ये 140 प्लस में जा सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। फिर अब पहले ये सिर्फ फास्ट बॉलिंग किया करते थे, अच्छा इनका बाउंसर है, लेकिन अब जिस तरह की ये वेरिएशन लेकर आए हैं T20 में, मेरा ख्याल है कि अब ये PSL में भी टीमों की पहली पसंद होंगे। और T20 ये पाकिस्तान टीम के में जितने इस वक्त फास्ट बॉलर खेल रहे हैं उन पे भी प्रेशर बढ़ाएंगे। ये मैं इस पे ये तारिक भाई की बात सेकंड करूंगा। अहमद दानियाल की जो PSL में एंट्री होती है ना, तो उन्हें देखा जाता है एज अ बॉलर हु हैज़ अ लॉट ऑफ पेस, लेकिन हु कैन नॉट कंट्रोल हिज लेंथ। ठीक है, फिर वो डोमेस्टिक में टाइम गुजारते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, यूज टू होते हैं इस बॉल के लेदर बॉल के साथ, एंड दिस इज द पीक। और इस बंदे की एवोल्यूशन ये है कि वो अपने आप को बॉलिंग और बैटिंग में इतना बेहतर करता चला गया कि पाकिस्तान के लिए मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे गया प्रेशर सिचुएशन में। और दूसरी तरफ साद मसूद इस PSL में पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ मैच खेलते हैं। आई रिमेंबर दो सीन्स वेरी विविडली। 20 रन उनको लगते हैं क्लोज मैच में, जहां बाबर और मां सदाकत खेल रहे हैं। 6 रन ओवर चाहिए ज़ल्मी को, 1 ओवर में वाइड्स भी होती हैं, 2 नो बॉल्स भी होती हैं। ड्रेसिंग रूम में वो बंदा बैठा परेशान, इमाद वसीम, आगा, शादाब, एवरी बिग प्लेयर इज कमिंग टू हिम टेलिंग हिम वी नो यू आर गोना मेक इट बिग, वी बिलीव इन यू, अच्छा हुआ तुम्हारे पे आज ये वक्त आ गया कि तुम जल्दी ग्रो कर जाओगे। आई एम सो हैप्पी फॉर हिम। दैट गाय टर्न्स इट अराउंड। वो जिस तरह तैयारी करके गया है और फिर सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच होना, फाइनल में जिस तरह उसने नर्व्स दिखाई ऑफ स्टील, तारिक भाई जिस तरह बात कर रहे हैं, एब्सोल्युटली अमेजिंग। अच्छा, अहमद दानियाल का मैं बड़ा दिलचस्प वाक़या सुनाऊँ। ये रावलपिंडी में थे हम, 1-2 साल पहले की शायद बात है। तो वहाँ कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का ये मैच खेलने गए थे, बिल्कुल नए नए थे ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। तो ये क्योंकि टेप बॉल से आए थे रेड बॉल क्रिकेट की तरफ उससे कुछ साल 6 महीने पहले। तो वो जब इन्होंने पंजाब से लाहौर से मैच खेला, वहाँ पे सेंट्रल पंजाब से शायद खेल रहे थे, तो वो जब 2 इनिंग्स कंप्लीट हो गई उस मैच की फर्स्ट क्लास, तो ये अपना बैग उठा के जाने लगे। तो उन्होंने कहा जी आप किधर जा रहे हैं? कहते मैच तो खत्म हो गया। उन्होंने कहा नहीं, एक इनिंग और होती है फर्स्ट क्लास मैच में 2-2 इनिंग्स होती। तो बड़े सादा लॉ हैं, लेकिन क्या ग्रोथ उनकी हुई है और अभी आगे मजीद होगी। कोई प्रेशर नहीं लेते वो किसी तरह, कोई बोझ नहीं उन पे। इसमें अगर हम जो बात करें ना, असल में देखें आप पूरा एशिया कप का, अगर आप जो राइजिंग स्टार का इवेंट देखें तो डिफरेंस क्या था, वो प्लेयर या उन प्लेयर्स का जो पोटेंशियल वाइज आई गेस कि टैलेंट वाइज 19-20 का फ़र्क होता है, किसी में थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम। टेम्परामेंट का फ़र्क है, जो प्रेशर को गेज कर सकता है, प्रेशर को हैंडल कर सकता है, वो हमें स्टैंड आउट 3-4 पाकिस्तान के नज़र आए। नंबर 1 अहमद दानियाल, सेमीफाइनल फाइनल कोई सेकंड थॉट नहीं है। पाकिस्तान को बांग्लादेश में भी एक मैच में वो जीत के करीब लेके गए। और पाकिस्तान जिस तरह कंसिडरिंग दैट फैक्ट कि कंटिन्यूसली स्ट्रगल कर रहा है डेथ बॉलिंग के अंदर, तमाम टॉप नॉच हमारे बॉलर वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपका स्ट्रेट अवे ये उस लिहाज से है। दूसरा मां सदाकत, हाईएस्ट रन गेटर 258 रन, नंबर 1 बॉलर, नंबर 1 बैटर, आप उसको रखें, उसको दूर ना करें। देखिए मेरा मानना ये है, जब आपका कोई लड़का इंटरनेशनल कमोडिटी के लिए तैयार होता है तो इट डजंट मीन कि उसको पहले दूर रखे, प्रोसीजर फॉलो करे, देयर नो रिक्वायरमेंट ऑफ दैट। वो प्रूव करके आया, उसको रखे, प्लेइंग 11 में ना रखे, स्क्वाड में रखें। आपको कोई 19-20 किसी लड़के को इंजरी आ जाती है, परफॉर्मेंस जाता है। साद मसूद ने जिस तरह परफॉर्म कर दिया, उस लड़के ने जितना पोटेंशियल शो किया, शायद सबसे नर्व्स वाइज स्ट्रॉन्ग लड़का वो नजर आया हमें, जो पोटेंशियल उसके अंदर नजर आया, आप उसको डगआउट में रखें। तो ये सुफियान तो ऑलरेडी
पाकिस्तान का फ्यूचर रह चुका है। तो ये 3-4 लड़के आप लेकिन 15 से ज्यादा रख नहीं सकते। नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि आपकी जब प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लुक अलाइक रखे ना जी, जो एक हमारे कोच बात करते हैं लुक अलाइक। नहीं, इसके पाकिस्तान टीम के बाद ए टीम होती है तो उसमें वो उसमें रखें, लेकिन आप 20 का स्क्वाड तो अभी से बना लें, अपना 20 का पूल बनाएं कि 20 में से हमने 15 लेके जाने, उस 20 के पूल में इनको मस्त रख लें। बस ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि क्या, और एक लास्ट चीज उसमें ये कि अहमद दानियाल, जो हम बड़े प्लेयर की बात कर रहे थे, जैसे ट्रेविस हेड की बात की, उन्होंने कैप्टन को खुद कहा कि मैंने ओपन पे जाना है, इन्होंने भी खुद ओवर मांगा। आपने आई एम श्योर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में सुना होगा, उसने कैप्टन को कहा कि मैं सुपर ओवर करूंगा। तो जो ये माइंडसेट रखता है, जो इतना क्लैरिटी रखता है लड़का, वो आपको पाकिस्तान को रिप्रेजेंट it's करेगा। important to now also debate this, ये point कि a player like अहमद दानियाल और even मास सदाकत, ऐसे players को at this point in their career क्या चाहिए होता है? क्या टीम के साथ, स्क्वाड के साथ बेंच पे बैठ के सीखना इज मोर इम्पोर्टेंट, या आप उनको साथ साथ और डोमेस्टिक में फीचर होने दें, या आप उनको अलाउ करें कि वो और क्रिकेट खेलें ताकि वो ग्रो करें एज अ प्लेयर? देखें, इस जो आपका एज ग्रुप जो रिप्रेजेंट कर रहा था हमें एशिया में राइजिंग स्टार्स में, उस लेवल पे आपको सबसे कंपेटिटिव क्रिकेट तो यही मिलेगी। मतलब यहाँ आप डोमेस्टिक खेल सकते हैं, यहाँ आप पाकिस्तान ए के लिए इंटरनेशनल टूर्स खेल सकते हैं। तो उनके कंपटीशन वाइज तो ये कमाल हो गया जो वो खेल रहे हैं। मास सदाकत की अगर हम बात करें या ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंसेस की बात करें, आई थिंक बहुत ज्यादा पॉजिटिव्स हैं। मास विल डेफिनेटली रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन द फ्यूचर फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम, लुक्स लाइक अ प्रोस्पेक्ट लाइक दैट। लेकिन हमें ओवरऑल सबकी तारीफ भी करनी चाहिए, क्योंकि ये चारों अनबीटन जो पाकिस्तान मैचेस जीता, उसमें डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट परफॉर्मर्स ने आकर परफॉर्म किया। हाँ, हम सुफियान मुकीम की बात उस तरह नहीं कर रहे क्योंकि वो इंटरनेशनल स्टार हैं, तो हम उनसे एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे हैं, लेकिन मैजिकल स्पेल्स आके उन्होंने किए। गाजी गौरी को कहीं पे आके स्कोर करनी पड़ी, कहीं पे आके आपको आपके मिडिल ऑर्डर में न्याजी ने भी स्कोर किया, आपके लोअर ऑर्डर में उमैद ने भी स्कोर किए। तो जितना भी कोचिंग स्टाफ था, इजाज अहमद जूनियर थे, साद उमैद, आसिफ गए हुए थे एज अ बॉलिंग कोच, दे हैव डन प्रीटी वेल। और उबैद की जो एवोल्यूशन आप देख रहे हैं, शाहिद अजीज में जो आप पोटेंशियल देखते हैं, तो ये आपको सराहना भी होगा और आई थिंक इसको डेवलप करना होगा और ये करना चाहिए भी। दैट्स द पोटेंशियल यू सी। और अब आगे आने वाला जो PSL ड्राफ्ट है वो बहुत सारी रीजंस की वजह से जो है वो और एक्साइटिंग होने वाला है। एक तो ऑब्वियसली पूल बढ़ गया, आपकी टीम्स नई ऐड हो गई हैं, तो दैट मीन्स के एग्जिस्टिंग टीम्स को जो है वो रिटेंशंस भी कम मिलेंगी। दैट मीन्स के देयर विल बी मोर प्लेयर्स up for grabs, and you know talents like मास सदाकत और अहमद दानियाल और इस तरह के जो हमारे यूथ के थ्रू आ रहे हैं, यूथ टीम्स के थ्रू आ रहे हैं, एक्साइटिंग होने वाला है draft। बिल्कुल, किसी को गिला नहीं रहेगा। कई प्लेयर्स को रह जाता था। अभी ये 5 या 6 टीमें जब ये थी तो कई प्लेयर्स जो होते थे वो उनका दुख होता था कि वो नहीं आ पाते थे। ज़ाहिर है पाकिस्तान से जितने प्लेयर्स की जगह होती थी उतने ही लिए जा सकते थे। तो अब कम से कम हसन बेहतर बता सकेंगे, मेरे ख्याल 30 से 32 प्लेयर्स तो पाकिस्तानी आएंगे अभी जो जब ये नई टीमें बनेगी तो उनकी जगह बनेगी। और मेरा ख्याल है कि ये जो ए टीमों का ए टीम पे तवज्जो देनी दोबारा से शुरू हुई है, और साथ साथ अंडर 19 टीम की तैयारी, और फिर जब ये कैंप्स लगना शुरू हुए हैं NCA में हालिया दिनों में, इस चीज़ को भी सराहा जाना चाहिए। आकिब जावेद जो हैं उनके लिए भी ताली बजनी चाहिए। और ये जो कोचेस से एजाज जूनियर या मंसूर अमजद गए हुए थे टीम के साथ, इन सब ने बहुत ही अच्छा किया इन लड़कों को, जिस तरह से इन्होंने केयर किया। क्योंकि ए टीम का तो लगता था कि हम भूल गए हैं, हमें सिर्फ पाकिस्तान टीम की फिक्र है। तो ये इस क्रिकेट बोर्ड और इस एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बहुत ही अच्छा काम किया है, जो ए टीम का अहया हुआ है फिर से। अब यहाँ से पाकिस्तान टीम को मिलना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, एंड अ लॉट ऑफ टैलेंट इज अप फॉर ग्रैब्स। हमने भी डिस्कस भी किया कि राइजिंग स्टार्स जो चैंपियनशिप पाकिस्तान ने जीती, एशिया की टाइटल होल्डर्स अब पाकिस्तान हैं, और रिपीटेडली हमने देखा है कि ए साइड ने जो है वे अपने जितने भी टूर्स है, टूर्नामेंट्स जहाँ पे कम्पीट किया है, बैक टू बैक रिजल्ट्स हमें नज़र आए हैं। और अब ये रिजल्ट्स कैसे जो है वो सीप इन करते हैं नेशनल साइड की प्रोग्रेस के टुवर्ड्स, डेवलपमेंट के टुवर्ड्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। और हम अपने शो में हम मज़ीद भी इसको डिस्कस करते रहेंगे। जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड योर एनालिसिस, एंड थैंक ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग स्पोर्ट्स टुनाइट। ऑफ कोर्स, बिफोर आई रैप अप, a quick reminder that you have to follow us on social media platforms, Facebook पे, Instagram पे, X पे और YouTube पे ज़रूर PTV Sports को follow करें, so that you can keep in touch with whatever is going on and so that you don't miss any updates from us. अपना बहुत ख्याल रखें and thank you for watching.